غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کا بیان بھی ریکارڈ۔ لطیف نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں گھر آتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو کئی بار خاور مانیکا کا فون آنے اور ان کے کہنے پر گھر سے نکالا۔ 2015 میں کبھی کبھار اور 2016-17 میں بانی پی ٹی آئی کا خاور مانیکا کے گھر آنا جانا زیادہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی گھر آتے تو دونوں کمرے میں چلے جاتے تھے۔ جج نے پوچھا کیا سابق چیئرمین پی ٹی آئی مشا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے؟ ملازم لطیف نے کہا وہ کمرے میں جاتا تو بانی پی ٹی آئی اسے برا بھلا کہتے، دونوں باہر نکال دیتے تھے۔ اس وقت مشا بی بی کے شوہر خاور مانیکا کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو۔ کیس میں خاور مانیکا، اون چودھری اور مفتی سعید پہلے ہی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ مزید سماعت 8 دسمبر تک ملتوی۔ آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا، بیوی صاحبہ ہیں، انہوں نے خود کیا اعتراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے؟ کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے؟ نون لیگ کے جاوید لطیف کا بانی پی ٹی آئی کے نکاح سے پہلے اہلیہ کو نہ دیکھنے کے دعوے پر بیان۔ کہا بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے دیکھ لیں، ملازم اور دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا بی بی صاحبہ نے خود بھی ملاقاتوں کا اعتراف نہیں کیا؟ پاک پتن کے لوگ بھولے نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی رات کب آتے تھے اور صبح کب جاتے تھے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ چھپانے کے لیے کلام الہی کو ڈھال بنایا۔ مرشد سے ملاقاتیں کب سے چل رہی ہیں، یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلیت پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی روشنی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا قانونی طور پر یہ کیس ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ اگر آپ کیس چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چلا لیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ درخواست گزار کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کرے۔ درخواست گزار خالد محمود نے کہا آپ آرڈر میں لکھ دیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، پارٹی کا کوئی عہدہ رکھ نہیں سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا سینس ہی نہیں ہے کہ انسان حکومت کیسی چلائی جاتی۔ حکومت اعظم خان چلا رہا تھا، اس نے جو ظلم کیا ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پھر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری عزت تھی؟ باہر سے کوئی گدھا بھی آ جاتا تھا وہ باعزت ہوتا، لیکن جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو ایم این ایز ایم پی ایز، اس کو گھاس میں نہیں لگا، اس کو نفرت تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو نہ کابینہ نہ ہی گھر میں اختیار تھا، انہیں کابینہ کے فیصلوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، حکومت اعظم خان چلاتے تھے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا انکشاف۔ کہا بانی پی ٹی آئی رات کو گھر جاتے، صبح فیصلے تبدیل کر دیتے، انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ امریکہ اور افغانستان کی جیلوں میں عافیہ صدیقی کا ریپ کیا گیا۔ عافیہ کو جیل کے گارڈز نے 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ جیل کے قیدیوں کے ہاتھوں عافیہ ان گنت بار جنسی ہراسانی کا نشانہ بنتی رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ سے بگرام میں جنسی زیادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو سمتھ کے امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے متعلق خوفناک انکشافات۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت پاکستان کو عافیہ سے ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں سب پتہ ہے۔ بولے کہ ایک امریکی شہری کی حیثیت سے جو کچھ امریکی جیلوں میں عافیہ کے ساتھ کیا گیا اس پر انہیں شرمندگی ہے۔ امریکی جیلوں میں جو سلوک عافیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عافیہ نے انہیں جو تفصیلات بتائی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور سب سچ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت امریکی جیلوں میں 10,250 خواتین ہیں۔ ان تمام خواتین میں سے جس خاتون کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا گیا وہ عافیہ ہے۔ عافیہ صدیقی کے وکیل نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کی ناکامی ہے کہ وہ عافیہ کو واپس نہیں لا پائی۔ پاکستان کو امریکہ سے عافیہ کی واپسی کے معاملے کو ترجیح دینا ہوگی۔
8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल शरीक। मरीम औरंगजेब के मुताबिक इजलास में आज खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालाकन डिवीज़न में मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार और मुतल्लिका डिवीजन्स के कोऑर्डिनेटर्स की भी शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को 20 दिन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। पीटीआई ने 2 दिसंबर को अली गौहर खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का ऐलान किया था। इसराइली फ़ज़ाइया की जनूबी गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमले खान यूनस नुसीरात कैंप पर किए गए। बरेज महाजिर कैंप पर इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि कई मकान मुकम्मल तबाह हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम का बताना है कि इसराइली तैयारों ने खान यूनस के शिमाल मशरकी इलाकों में फॉस्फोरस बम बरसाए। इसराइली फ़ौज का आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा में आज ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, जबकि 4 शदीद ज़ख्मी हुए। गजा में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 78 हो गई है। बरतानवी शहरी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए गजा में मारा गया। 19 साल का इसराइली निजात बरतानवी 2 दिन पहले गजा पहुंचा था। क्या अब बरतानवी फौजी भी गजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर का जवाब देने से इनकार। अल-क़साम ब्रिगेड ने कहा कि 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई से हमास को निशाना बनाया जा सकेगा। हमास जानबूझकर अपने आप को आम शहरियों में शामिल करती है ताकि गजा के लोग हमास के मजालिम का खमियाजा भुगतें। ना धुआं छोड़ने वाले ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई, ना ही मास्क का इस्तेमाल। पंजाब में स्मॉग कम ना हो सकी। सुबह लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में 90 नंबर के बाद दोपहर तक फिर पहले नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कत्ल की गई तालिबा टोबा टेक सिंह में जिंदा सलामत। थाना बनीगाला इस्लामाबाद में अक्टूबर में ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा इंक्वायरी में झूठा निकला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा ज़ाती रंजिश पर दर्ज कराया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस का कहना है कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ऑनलाइन कंपनी के राइटर को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से 1 शहरी जाम बहक। लवाहिकीन का कहना है कि सलीम को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। मुलजिम के फरार की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुलजिम को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि कत्ल का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। मज़ीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के होली फैमिली अस्पताल की तामीर नौ के बायस बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में रश बढ़ गया। नर्सरी वार्ड भर गए। ऑक्सीजन की कमी से नौज़ायदा बच्चों के लिए खतरात बढ़ गए। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर और बीमार बच्चे की मां की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में डॉक्टर खातून से कह रहा है कि हुकूमत ने 4 बेड्स दिए हैं, 5वां मरीज कहाँ रखें? हमसे लड़ने के बजाय हुकाम से शिकायत करें। अस्पताल MS का कहना है कि होली फैमिली अस्पताल में तामीराती काम की वजह से वर्कलोड ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं। हैदराबाद के मोहालियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद 2 रोज़ बढ़ा दी गई। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक वायरस की तस्दीक कासिमाबाद पंपिंग स्टेशन से लिए गए नमूने में हुई। इससे कबल जुलाई 2021 में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। शहर में आज भी कचरा ना उठाया जा सका। जगह जगह कचरे के ढेर से शहरियों को मुश्किलात। फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियां फायर ब्रिगेड स्टेशन और बल्दिया में खड़ी हैं।
पेशावर के वर्सक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के 3 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े और रोड पर रिक्शा और दीगर गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है। 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबूगढ़ी के रिहायशी और अफगान बाशिंदे हैं। पंजाब में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में कई गुना इजाफा, 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी। 1 जनवरी से इतलाक होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में सूबाई काबीना का फैसला। LTV, HTV, PSB लाइसेंस फीस भी बढ़ाने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और BDS के तलबा ट्रांसफ़र पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। इजलास से काबिल वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी ब्लॉक पर काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी ब्लॉक का काम रवां माह मुकम्मल करने की हिदायत की। –1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशाने हैदर का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मज़ाहमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। 2024 पाकिस्तान समेत 55 ममालिक में तब्दीली का साल। एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका समेत 3 अरब से ज़ायद मजमूई आबादी रखने वाले ममालिक में इंतखाबात होंगे। पड़ोसी मुल्क भारत में अप्रैल-मई में मोदी एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। पड़ोसी मुल्क ईरान और बांग्लादेश में भी इंतखाबी मार्का होगा। 23 साल से रूस में बरसर इक़्तिदार व्लादिमीर पुतिन की किस्मत का फैसला 17 मार्च को होगा। भारतीय रियासत मणिपुर में ताज़ा फसादात में 13 अफराद हलाक। 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रोज़ ज़िला तंगनुपाल में पेश आया। फसादात में अब तक कम अज़ कम 200 अफराद हलाक हो चुके। बेशतर इलाकों में अब भी इंटरनेट बंद। समंदरी तूफान में चांग के ज़ेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेन परवाज़ें मनसूख, स्कूल्स बंद, बिजली गायब, एयरपोर्ट के रनवेज और सबवेज पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई। तूफान इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट। तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया।